फॉरवर्डिंग नोट वगैरह लिख दिए पूरा? हाँ, अभी लिख के यू कीप इट, विल कलेक्ट दैट. हाँ, so I am also in the process of preparing your this instrumentation vis-a-vis. I told you, no, it takes little time for me because last yesterday what I did, I kept everything bag in that, and these people have forgotten to put that bag in my car. तो वैसा ही रह गया. I was panic not getting इतना सारा मटेरियल इकट्ठा करे कहाँ गया बोल के. Then around 9:30 I was so tired and all with pains and all. I couldn't do that. But anyway, whatever we have not done, that rape case वाला है एक, और ये toxin वाला एक है, so these we try to complete. And then hanging, suicide, homicide वो भी नहीं करे बराबर. So all that which is not completed we'll try to complete today. And tomorrow you will have the document, people coming from CFSL, both ballistics document they will be taking. And one more thing, I'll try, I can't promise, I'll ask the director. अभी TLC वगैरह आपको थोड़ा है ना, एक्चुअल TLC आप देखे तो आपको पूरा समझ में आएगा. वैसा कुछ विजिट अरेंज कर सके तो वो उसमें तो नहीं था ना का टाइम टेबल में, तो उसके लिए भी खाली ये लोगों को भेजने के लिए वो परमिशन था. बट ही इज़ ए गुड मैन, बट आई विल आस्क हिम इफ दे आर फ्री. वो लोग कुछ करने का नहीं दिखाना, बस उतना ही है ना. तो आई विल रिक्वेस्ट हिम probably last day or before that, whenever we find time we'll go there, we'll just see how a equipment looks like. अब देखने से और भी याद आता है. हाँ, वो जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड है इक्विपमेंट वो भी देखेंगे. GCMS वगैरह अच्छा है उनके पास. वो सब थ्योरी में बोलने से, थ्योरी में तो बोलेंगे, वो एक बार देख के तो डेमोन्स्ट्रेशन कॉलम कैसा दिखता है, कौन सा दिखता है, मोबाइल कौन सा है, स्टेशनरी, ये सब देखने के बाद आपको अच्छा मालूम होगा. तो वो अरेंजमेंट भी आपको हमको याद दिलाना, थोड़ा भूल जाते इतने सारे उसमें, आप थोड़ा याद दिलाए तो हम भी कर सकते. एक मिनट हमको ये सेटअप कर. What is the root and all, you should also be able to understand. Taxicon. Taxicon is the root Greek word from which you get the name. Logi, anyway, you know that. And the exact science, you know, what is that it is going to cover? It covers sources from where a gentleman is getting that poison, if it is a homicide or it is suicide. What is the source from where she is getting, the person who is committing suicide, from where she is getting or he is getting the poison is also important. Now what are the characteristic features? So how many classifications can be there? One, depending upon the source. One, route of administration, we said acute, semi-acute and a chronic. That is one way. Then depending upon the effect that they are going to generate, irrespective of the route. What are the routes we discussed yesterday? We said so many routes: intramuscular, intravenous, snorting, sniffing, injection. Then we also said anointment. So we said depending upon the route through which they are administered, they are going to show their effects depending upon the target organs which are being attacked. Now based on that we said SYNCAM. SYNCAM mein we try to understand corrosives, irritants, then neurotics, SYN है ना, NB है, neurotics, cardiac, asphyxial, then miscellaneous. So इसका मतलब क्या है? कार्डियोवैस्कुलर किसके ऊपर है? टारगेट ऑर्गन इज इक्वल टू हार्ट. The reason why we should know, the doctor who is conducting the postmortem, he has to invariably send that particular viscera organ. If suppose it is a cardiovascular, so it is must that he should send both heart and then the lung. It is showing its effect. Let us say it is a neurotic, hypnotic type of thing. Then the brain should be sent, isn't it? So on which part of the viscera it is showing the action, accordingly that. And what kind of preservatives do you think? Preservatives are also important. So suppose a alcohol case is reported. Somebody consumed lot of alcohol and we do not know whether it is an adulterated one or not, but a lot of one after the other, lot of people complained about dizziness, vomiting, cramps in the stomach, and they started reporting. And finally these are the things. And then what kind of
sample we are supposed to take, and suppose in case if somebody dies, what kind of visceral organs to be taken out, and what should be the preservative. What should be the preservative? Person not died, one scenario. अब क्या क्या कलेक्ट करोगे उसमें से? Not died. Not died, survive. Blood. हाँ, ब्लड और यूरिन, ब्लड और यूरिन दोनों लेके ही जाएंगे, और इसमें तुरंत हमको होना चाहिए रिपोर्ट। ये तो क्लिनिकल रिपोर्ट बनता है। हाँ ठीक है, थैंक यू। अगर मुझे माइनस पेटेंट अधिक रास्कल बटन फर्स्ट, उसमें से क्या होता है हमको देन क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में तुरंत हमको होना है कौन सा पॉइजन है। अल्कोहल तो दिख रखा है सब अभी, बट इसके अलावा कुछ अडल्ट्रेशन है क्या? अचानक नहीं तो खाली अल्कोहल से कोई कुछ भी नहीं होता, ओनली बिकॉज इट एड्स एंड इट स्लोज डाउन दी एक्शन ऑफ द ब्रेन, दैट्स इट। बट इसके अलावा और भी इसमें मिलावट रहता है। कौन सा मिलावट हो सकता है? मिथाइल अल्कोहल, और क्या है? बार्बिट्रेट्स और रीटा, रीटा का वो होता है ना, रीटा बाल को लगाने का, रीटा बोल के राउंड राउंड वाल गोल गोल वाला, तो इसको ऐसा पूरा करके पानी में उबाल के लगाते हैं ना, ऐसा शैम्पू जैसा, वो भी थोड़ा वो कड़वा टेस्ट आने के लिए वो भी। इसके अलावा वो तो डेंजरस नहीं है, थोड़ा कड़वा लगेगा, इससे तो हानि कुछ भी नहीं है। मगर ये बैटरीज जो होता है ना, बैटरीज का ऐसा इसको करके थोड़ा वो भी डालते हैं, ज़्यादा फ्रोथ आना वो बना बोल के। नहीं, अमोनियम का कुछ नाइट्रेट वगैरह रहता है ना, वो डालने के लिए वो सब डालेंगे। और इसके अलावा और एक हिप्नोटिक है, क्लोरल हाइड्रेट बोल के, क्लोरल हाइड्रेट, हाँ क्लोरल हाइड्रेट, इसका नाम तो अजीब ही है था, क्लोरल हाइड्रेट। Chloral hydrate is also a kind of a hypnotic. I'll tell you anyway. That's also important. Who asked formula? Good. I'll remind me. I'll find out and tell you. तो कभी कभी वो भी पूछ सकते हैं ना, कंपटीशन में क्या नहीं पूछता वो किसी को पता नहीं रहता। So this is one compound. That much I can say that it is a hypnotic. So अल्कोहल कौन सा है अभी हमको पता है, CNS रिप्रेजेंट। हिप्नोटिक भी हमको पता है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट। सेडेटिव क्या है, ये पूरा एक ही उसमें आता, हिप्नोटिक, ट्रैंक्विलाइजर, सेडेटिव हम देखेंगे क्या क्या फर्क है उसमें, हम तो देखेंगे। तो दीज आर ऑल दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ CNS डिप्रेशन। अब एक के जगह दो हो रहा हमारा डिप्रेशन, कौन सा इथाइल अल्कोहल तो एक है, और इसके अलावा और कौन सा हिप्नोटिक हम यूज कर रहे हैं इसमें, क्लोरल हाइड्रेट इज ऑल्सो। तो दोनों मिक्स हो गए, तो इसका लीथल डोज कभी सुना है इसका वर्ड, लीथल डोज, ये भी आता है क्वेश्चन, लीथल डोज। LD50 क्या मतलब LD50 का? अगर 100 लोग को ये दिए, 100 लोग को ये दिए तो उतने में कौन सा मिनिमम है ताकि वो 50 लोग ऐसे मर गए, उसमें कितना डोज है उसमें। So that is called LD50 or lethal dose। So उसमें ये lethal dose example hypnotic का है, let us say 50 milligrams, only for understanding purpose। alcohol का है let us say 300 milligrams। ये LD वाला बनने का इतना मिनिमम बस है, इसके लिए तो अल्कोहल के लिए तो ये बस है। Now that means what? Even somebody consumes 50 milligrams also, he is not going to die. That's what we understand. अब ये दोनों मिक्सिंग हो गए तो क्या होता, 50 के नीचे भी अगर ये इसका क्वांटिटी है, इसके नीचे भी इसका क्वांटिटी है, दोनों मिला है तो यही लेवल में डिलीटेरियस इफेक्ट आ जाएगा। Am I clear about this? Even if the quantity is less than half of it, because since these two hypnotic and CNS represent, because both of them are mixed together, you will get an effect called the synergetic effect. Synergetic. This is a cumulative effect called cumulative.
Why is this coming? Because two hypnotics or two depressants together, if they are taken, alcohol mixed with chloral hydrate, if that is taken together, so they will act as synergetic materials. So द्विगुणीकृत होता है उसका इफेक्ट जो होता है. Even smaller doses, if these two are mixed, the effect will be much more dangerous. This point also you have to remember. What are the common adulterants? What are the common adulterants? उसमें अल्कोहल में somebody said ethyl alcohol, methyl alcohol. तो दोनों में ही एक ही है. एक तो इसमें सिंगल कार्बन है, इसमें तो दो कार्बन है. फर्क क्या है? क्यों? Why that should be so deleterious? वही क्यों है? क्यों बोल के वो समझ में आया ना. That point will be there for very long. हम भूलते नहीं. इसीलिए थोड़ा इसका पीछे क्या है स्टोरी वो भी हमको सुनना पड़ेगा. क्या है कुछ सोचो. What will be the reason? Both of them belong to the same class. Alcohol, OH का मतलब अल्कोहल का, दो ही अल्कोहल है, कोई प्रॉब्लम नहीं. मगर अल्कोहल, ये इथेल अल्कोहल को अल्कोहल जनरल बोलता है, असल में वो इथेल अल्कोहल होता है. इथेल अल्कोहल हम नहीं लिखा ना इथेल बोल के. इथेल, ये तो इथेल है, ये मिथेल है, पता है ना. तो इसमें क्या फर्क है? अल्कोहल अंदर के जाएंगे, इसका तो मेटाबॉलिज्म होंगे, लिवर टॉक्सिसिटी निकालेंगे, किडनी भी वही काम करेंगे. मगर ये दोनों में क्या फर्क है? मिथाइल अल्कोहल इतना डेलिटेरियस क्यों बनेगा, ये इथाइल अल्कोहल इतना नहीं है क्यों? हाँ, concentration is one factor, but we are comparing not concentration factor, we are comparing the chemical factors. केमिकल इसीलिए फार्मूला डाले ना. बताओ. Simple. Now, in the body, if it is consumed, now the end product of metabolism of this end product, असल में क्या होता बॉडी में कंज्यूम करे तो क्या होता? एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इथाइल अल्कोहल इन द मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी इज कार्बन डाइऑक्साइड. दिक्कत कुछ है? कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे ही चले जाता, वाटर वेपर तो वैसे ही चले जाता, यूरिन में चले जाता. हमको क्या प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम. एट द मोस्ट इफ द क्वांटिटी इज मोर, मे बी थोड़ा ऐसा ऐसा होता, वो तो बस इतना तो नहीं है ना, इतना तो नहीं. मगर ये मिथाइल अल्कोहल का देखिए तो एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्माल्डिहाइड. फॉर्माल्डिहाइड इसको ये ग्रुप को आल्डिहाइड बोलते हैं. CHO को आल्डिहाइड, OH को अल्कोहल. ऑल ऐसा है तो कीटोन. थोड़ा ये तीनों समझ में रखो. आल्डिहाइड, अल्कोहल, OH, इधर इधर OH अल्कोहल, दिस इज कीटोन, है ना. ये फॉर्माल्डिहाइड जो है एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस इज कन्वर्टेड इन द बॉडी अगेन इनटू फर्दर फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड क्यों बनता है? इसका नाम फॉर्मिक एसिड पता है? फार्मा मीन्स एंट, एंट, एंट. एंट ऐसा काटे तो क्या होता है हमको? दर्द नहीं. पहले क्या होता? एसिड हमारे ऊपर डाले था कैसा, वैसा ही नहीं वैसा ही दर्द होता ना. तो वो एंट से निकलता है फॉर्मिक एसिड. इसीलिए फॉर्मी बोले तो एंट, फॉर्मिक एसिड माने एंट से निकल रहा, इसीलिए वो एसिड को फॉर्मिक एसिड माना जाता है. एंड इससे हमको क्या दिक्कत है? दोनों से हमको क्या दिक्कत है? ये तो CO2 नहीं है, फॉर्माल्डिहाइड है. इसका इफेक्ट क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम जो है, ये आंख को जो जा रहा नर्व ब्रेन से, उसको क्या बोलता है? व्हाट इज दैट नर्व कॉल्ड? ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व के ऊपर इसका असर बनता है. ऑप्टिक नर्व from brain to eye, that particular nerve, aldehyde is going to, formaldehyde is going to act, and it will create what is known as
ऑप्टिक नर्व एडिमा, एडिमा का मतलब हाँ वो ई डी है, रिटेंशन ऑफ बॉर्डर एंड बिकमिंग लिटिल बल्जिंग। अब थोड़ा ऐसा बल्जिंग, इसके ऊपर असर क्या होता है, ऑप्टिक नर्व विजन का है, तुम्हारा नर्व तो बल्जिंग हो रहा है, तुम्हारा विजन ऐसा 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 थोड़ा ब्लर हो जाता विजन। अगर ज़्यादा कंज्यूम करें, मिथाइल अल्कोहल का ज़्यादा मात्रा है उसमें अडल्ट्रेशन में, अब क्या होगा, तुम्हारा नर्व का पूरा खराब हो जाएगा। तो you may become blind, that is the point you have to remember। मिथाइल अल्कोहल से ये सब होता है, इसीलिए if somebody complains after consuming alcohol, if somebody complains that they are losing their vision, giddiness ऐसा कुछ आ रहा, हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, that means इसका मिथाइल अल्कोहल का मिलावट, वही सोचना है। So this is what you need to remember with regard to alcohol। Then this battery वाला वो भी it's not good, and your Ritonavir is not very harmful, but then they are also equally barbiturates. Somebody said barbiturates. Barbiturates also are CNS depressants. So barbiturates से, chloral hydrate से we are getting what is known as a synergistic effect, और जल्दी मर जाते लोग, थोड़ा देर में मरने वाला, इसमें मिलावट हो गए तो that is the reason why adulteration is that punishable. That is also punishable. Why? Because it is harmful for the health of the person. So this also you need to remember. Now target organ एक हो गया, then why dosage is also important, why route is important, why dosage is important. Body has a capacity, some immune system built in that, so that any foreign material which is not very useful for the body, it tries to remove from the body. First line of defense is what? First line of defense, यूरिन तो पूरा बॉडी में जाने के बाद यूरिन आता ना, पहले तो नहीं आता। व्हाट इज द फर्स्ट सिम्टम दैट इट विल ट्राई टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी? वॉमिटिंग। हाँ, वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग एक होता। देन एंड वॉमिटिंग के बाद देन सपोज इट हैज गॉन टू द स्टेज अगेन स्टमक, अगर जिंदा है अभी आदमी, कंप्लेन कर रहा, चिल्ला रहा, यू आर टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? What is the way out to remove the poison? डॉक्टर के पास गए तो वो रिमूव करने के लिए कोशिश करे ना। हाँ, what is that called? Stomach wash। हाँ, stomach lavage कुछ बोलता है इसको। There is a tube and all, they try to insert and then try to remove। and हमारा फोरेंसिक के लिए वो काम आएगा। क्यों? अगर आदमी जिंदा है, immediately rush to the hospital, डॉक्टर को ऐसा तो बोलेंगे ना, कोई तो लेके शी मस्ट हैव कंप्लेंट और ही मस्ट हैव कंप्लेंट, हमको ऐसा करे वो बोल के, एक्सीडेंटल भी होता है कभी कभी, ये बोल के वो पिए ऐसा ऐसा बोल के, तो देन डॉक्टर आफ्टर गोइंग टू द एमएलसी सेक्शन दे विल रजिस्टर, ये एक्सीडेंट रजिस्टर में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? देन दे विल अरेंज व्हाट इज नोन एज स्टमक वॉश। एंड स्टमक वॉश से क्या मतलब? वेयर विल इट बी सेंट स्टमक वॉश? और यूरिन भी कलेक्ट करेंगे, ब्लड भी कलेक्ट करेंगे, आपको भेजेंगे अंदर का कंटेंट क्या है तो। हाँ, एफएसएल को भेजेंगे। एंड दीज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आदमी अभी जिंदा है एंड लाइफ एंड डेथ का सवाल है, तो सच केसेस हैव टू बी टेकन ऑन प्रायोरिटी। एंड उसके तो थोड़ा पैसा वैसा लगेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो दे विल एग्जामिन दैम एंड देन दे विल फाइंड आउट दैट दिस इज द adulteration or this is the exactly is the composition of the so and so poison, है ना। तो उसके बाद क्या करना चाहिए? डॉक्टर को क्या करना है? हु इज ट्रीटिंग द पेशेंट, उसको एंटीडोट तो देना है, कितना मोताज में देना है, कैसा देना है, इंट्रावेनस है, इनका हालत क्या है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड होता है। एंड देन ही विल अकॉर्डिंगली प्रोसीड एंड देन आफ्टरवर्ड्स दे मे इन द प्रोसेस यू मे हैव टू टेक डाइंग डिक्लेरेशन ऑल्सो। प्लीज रिमेंबर, if you feel, if the doctor treating her feels or him feels that there is constant deterioration day by day, now his mind should be alert that I have to now time for me to take the dying declaration। उसके लिए तो हम पूरा 32(1) का तो पूरा पढ़ लेना चाहिए। अब कैसा लेना है, मैजिस्ट्रेट को बुलाना है, टाइम है बुलाने का, टाइम नहीं है, रिलेटिव को बुलाना है, क्या करना है, all that will be again as per law।
Done. Now we said whether the use of substance is relevant to the cause and manner of death, then possible use of chemical substance including prescribed drugs. कभी कभी क्या होता है, now some regular medicines also if they are abused, now हमको तो नींद का प्रॉब्लम है, नहीं तो somebody is treated for some anxiety हो रहा, ज़्यादा हो रहा हमको, doctor prescribed some anti-anxiology, so I have taken that, or some tranquilizer, that will reduce my stress and then that will give me good sleep and all. Now what I do, some students are also there, my own children, students are studying in some colleges and all, उनको भी क्या है, साल भर नहीं पढ़ेंगे ये लोग, रात में नाइट आउट्स करेंगे, तो नाइट आउट करने के लिए ऐसा टैबलेट लेंगे जो नींद नहीं आता, उसमें दो है एम्फेटामिन्स, एम्फेटामिन्स कौन सा होता है हमारा, स्टिमुलेंट्स, एम्फेटामिन का ले लो बस एक टैबलेट, अब उससे क्या होता, हाइपर टेंशन, हाइपर हो जाता पूरा, वो वही आदत हो गया हर रोज एक एक लेने का, फिर देर में कम वन डे दैट विदाउट दैट ड्रग यू विल नॉट गेट एनी स्लीप, यू विल बिकम रेस्टलेस, और वो सेम एफर्ट होना बोले तो डोज बढ़ते जाना, इंक्रीज करते जाना, सो दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिपेंडेंसी. एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी क्या होता है, अरे हम नहीं लिए तो कुछ तो ऐसा ही समथिंग अनईजीनेस गोज ऑन इन आवर, हाँ, सो दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी. So physical dependency, psychological dependency, when we talk of narcotics, that is more important. Now, possible use of chemical substance including prescribed drug, and कभी कभी क्या होता है overdosing, क्या होता है सेल्फ मेडिकेशन, डोज इतना प्रिस्क्राइब करा और ज्यादा लो, है ना, so that is also dangerous, overdoses of the prescribed medicine. Or another thing what you can think of, prescribed drugs के बारे में, what is that you can imagine which may lead to death sometimes. Combination of the drugs. वो तो सही है, डोसेज सही है, और ओवरडोज ले वो भी डेंजरस है, और इसके अलावा what is that, Food taking, और important point you are forgetting, expiry date. तो ओवरडोज एक है, एक्सपायरी डेट एक है, so these things also whenever we talk of prescribed drug you have to be very careful about these things. And requested to exclude the involvement of substances that have a bearing on the cause of the death, may have affected the behavior of the person. ये किसके मामले में, behavior of the mind altering, what is the word used, no, I have given the meaning of that, what is the original word, mind altering, NDPS में क्या है, psychotropic, psycho means mind, tropic means altering, mind altering substances, mood altering, mind altering, psychotropic, tropic means alteration, mood change, so psychotropic. No, psychotropic substances are going to change the mind, mood, behavior. So hence any drug which changes the behavior and which is going to adversely affect the health of the person, that can also be called as a medicine. Maybe it is medicine. For example, a cancer terminal patient है, उसको कीमोथेरेपी के अलावा कुछ भी नहीं, इतना दर्द होता है, when there is something tumor going on in your brain and you can't even, इतना दर्द, ये छोटे से उसमें भी हमको इतना दर्द हो रहा, and imagine some brain tumor kind of a thing, how much pain it will be there, isn't it? आपको इतना मतलब इसमें बढ़ा रहे हैं, हम वही बात कर रहे थे. नहीं, वो तो ठीक है, God is great towards me, I have not died in the process, no. What happens if गलत से ऐसा स्पीड गए थे, that's we should be thankful to God. तो उसमें ऐसा होता है, then in order to make the person withstand that pain, पेन किलर के जैसा देंगे, what, तुम्हारा मार्फिन वगैरह, देयर इज एन इंटेंडेड पर्पस फॉर दैट. अब वो आ रहा बोल के कुछ तो दर्द रहता है, लेके जाओ, वो मार्फिन क्या होता, इट विल बिकम एडिक्ट, you are going to become an addict for that, isn't it? Now that is the kind of thing that is going to alter your behavior, isn't it?
behavior of the person. In most important is the investigation of vehicular crashes. अब अल्कोहल ज़्यादा लिए, हमारे लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ज़्यादा पियेंगे चलाएंगे गाड़ी। अब मरने वाला का है किस्मत है, वो बचता ऐसा ही चले जाता ऊपर बोले। सो अल्कोहल पर से इज नॉट दैट डेंजरस। उसका क्या है, द मोर यू टेक बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल देन इट इज गोइंग टू एडवर्सली अफेक्ट योर मोटर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मोटर सिस्टम। सो पूरा गाड़ी तो मोटर के ऊपर ही चलता ना। सो वंस योर मोटर थिंग इज इम्पेयर्ड देन यू आर गोइंग टू डेफिनेटली मीट विद एन एक्सीडेंट। तो इसीलिए उसका थोड़ा पाबंदी रखा है, इतना ही लेवल। वंस यू स्टार्ट ड्रिंकिंग विल यू ऑब्जर्व एनी लेवल्स। तो इसीलिए तुम जितना भी पीना है घर में आराम से बैठो, बियर पीना है, रम पीना है, जो पीना है पी लो आराम से घर में, कोई तो दिक्कत नहीं है। वो अपना अपने दूसरे आदमी के तो वो दिक्कत नहीं है ना, तुम मरना है तो मर जाओ आराम से, और दूसरे का तो नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एज लॉन्ग एज यू वांट टू स्पॉइल योर लाइफ, दैट इज योर डेस्टिनी, योर विश। You can't under the influence of alcohol kill somebody, no. So that's the reason people said you आराम से पी लो, खराब करना है तो लिवर सिरोसिस के मरो तुम, वो हमको कोई दिक्कत नहीं। मगर वो लेके ऐसा सड़क में आके दूसरे लोगों को मारे तो वो दिक्कत है ना। So that is the reason they said public place, drinking in the public place, that's what they said, you know. You are not supposed to create nuisance and all, but ये तो होता है, नॉट होना बोल के हम तो कोई नहीं करेंगे। जो बंदा अच्छा बंदा है, जैसे नॉर्मल बिहेवियर है, आजू बाजू लेडीज आए तो ऐसा हट जाएंगे, नमस्ते बोलेंगे, कुछ सीट है तो मैडम आइए बोलेंगे, वैसा करेंगे। अब वंस ही स्टार्ट्स टेकिंग दैट, व्हाट विल हैपन, एक पैग सोशल ड्रिंकिंग और दूसरा पैग तीसरा चलते जाता है ऐसा ही कहा। और एक स्टेज ऐसा आता है जो इतना अच्छा भोला भाला, कभी भी इनके जिंदगी में कुछ भी लफ्ज भी नहीं निकला उनसे मुंह से, अब आने लगता, आप मैडम कैसा ऐसा 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 सब सामने सामने आएंगे, एज इफ ही इज अबाउट टू फॉलो मी, ऐसा तो आएंगे, हमको तो डर लगता ना। सो व्हाई दिस बिहेवियर मीन्स, दिस इज बिकॉज, दिस इज ओनली बिकॉज दैट यू लूज व्हाट इज नोन एज इनहिबिशन। इनहिबिशन इसीलिए हम तो वो नार्कोटिक्स में वो इस्तेमाल करते हैं ना, नार्कोटिक उसमें क्या करते हैं हम, सोडियम पेंटाथॉल, हम वही कर रहे हैं ना। इनहिबिशन लूज करें तो क्या है, इसके पहले भी हम अल्कोहल देते थे, कोई बंदा आके कुछ उनका आदत है पीने का, चलो दे दो उनको, अब वो मूड में आके ही विल टेक यू एज अ फ्रेंड। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज हमारा फ्रेंड है, हम पीना बोले तो पिला रहे, खाना बोले तो खाना दे रहे बोल के। नहीं और सोडियम पेंटाथॉल नहीं, और कौन सा ड्रग बताया, दूसरा सीरम नहीं अभी क्या एम्फेटामिन अलग है, वो स्टिमुलेंट है। तो इसमें क्या होता, वैसा ही दे लूज व्हाट इज नोन एज इनहिबिशन। नाउ द मोमेंट यू लूज द इनहिबिशन, नॉट इमेजिनेशन, अब क्या है, थोड़ा कर्टसी रखन, अब सब चीज सबको बोल के तो नहीं फिरते ना। अब वो in that those age what people lose, they lose that social barrier जो होता है ना, हमारा बिहेवियर में जो एक्सपेक्टेशन, सिविलियन बिहेवियर जो होता है ना, ऐसा लेडीज हम वो है ना एग्जाम्पल, यू आर नॉट सपोज टू स्टैंड बाई देयर साइड, ऐसा ऐसा करके तो बात तो नहीं करेंगे ना, दैट इज अनसोशल थिंग। बट वो मूड में आके क्या करेंगे, वी लूज इनहिबिशन। जो मन में अच्छा करने का मन लगता ना, मन के हिसाब से जाए, विल नॉट अप्लाई ब्रेन, ब्रेन तो हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए वी गो बाय वॉट एवर इज डिक्टेटेड बाय आवर हार्ट, विल गो बाय दैट, है ना। हाँ, डोंट केयर। अगर उसमें क्या बोलता है उनको, ही टेक्स अस एज फ्रेंड, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं है तो ये तो हमारा फ्रेंड है, जितना भी हमारा मन में है हम तो चोरी तो कर, हाँ साहब कर दिए, हम उधर गए, ऐसा ऐसा बोल के ही विल ओपन अप। लूजिंग इनहिबिशन इज ओपनिंग अप। ओपनिंग अप करे तो तुम, यू आर माई फ्रेंड, सो फ्रेंड को क्या करेंगे हम, जो मन में है सब बता दिया, दैट विल कम आउट, ट्रूथ विल कम आउट, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड ट्रूथ सिरप। इसके पहले वो था, वो तो पीने से टाइम लगेगा ना, अब तुम बंद, वो बैन भी है, अब कोई इतना क्रेटर फोन पिलाएंगे बीयर बॉटल इनको, तो ये तो सस्ता है ना, सोडियम पेंटाथॉल, and that is also, I mean, this shall be whether
सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस कर्नाटक, स्टेट ऑफ कर्नाटक में उसे वो तो लेना नहीं है, एडमिसिबल नहीं है बोला है। हाँ, तो उसका पर्पस अलग है वो, तो मेडिसिनल का इसका पर्पस अलग। प्रिस्क्रिप्शन भी पूछते, आजकल प्रिस्क्रिप्शन भी पूछ रहे। इसके पहले एसिड थ्रोइंग था, विट्रियल एज, व्हाट इज कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड, विट्रियल एज। व्हाई इज इट गेटिंग दैट नेम, विट्रियल एज? विट्रियल H2SO4 का नाम है, ऑयल ऑफ, हाँ, ऑयल ऑफ विट्रियल, इसीलिए इसका विट्रियल एज बोलता है। सो एसिड ही नहीं रहना है उसका, अल्कोहल, कोरोसिव, इरिटेंट कोई भी है, मगर नाम तो वही है, विट्रियल एज। उसमें क्या होता है, एक आई कुड गेट दैट सम वॉलंटियर NGO एक स्टार्ट करा दिल्ली में शायद। सो उसमें क्या हुआ, दिस लेडी इज हरसेल्फ ए विक्टिम ऑफ दैट एसिड अटैक। उन्होंने क्या करा, शी अप्लाइड फॉर ए पिल। पिल क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन, है ना। तो वो लेके उन्होंने ये प्रोडक्शन ऑफ एसिड शुड बी बैन, वो लेके फिर उन्होंने, मगर विदाउट एसिड देर आर अदर पर्पज ऑल्सो फॉर एसिड। तो वो लोग बोले नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा मत करो, थोड़ा लाइसेंस जैसा एक्सप्लोजिव मटेरियल है, हाँ, रेस्ट्रिक्शन कर दो बोल के। देन व्हाट इज दैट, यू नीड टू शो योर फोटो ID कार्ड, आधार कार्ड, देन यू शो योर प्रूफ ऑफ एज, बिलो 18 नो सेलिंग विदाउट दिस। ऐसा तो है, आई मीन आफ्टर वन इंसिडेंट वी गेट सम एक्सपीरियंस, सो अकॉर्डिंगली वी ट्राई टू। क्या है, आप नहीं सुन रहा, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, ऑफिस से कोई अर्जेंट मैसेज, ठीक है ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू, आई मीन जो होता है, आई डोंट बिलीव इन स्ट्रिक्टली रीडिंग वर्ड बाय वर्ड, जो मन में आता वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो वो भी बोलेंगे। सो इनहिबिशन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, we lose inhibition, we start telling the truth, hence the name for sodium pentothal truth serum also has come, isn't it? Because even these also act on the central nervous system. So the moment you have this, you lose inhibition, you will open up and you will become susceptible for interrogation, susceptible for interrogation. So this is what is that. May have affected the behavior of the person. Behavior is most important in investigation. Vehicular crashes where substances used may have affected the ability to drive safely and therefore contributed to the event. Contributed to the event माने तुम्हारा road accident वगैरह. So this is what you need to understand. Then moving on to the other slide. So blindness, how it is affecting other vital organs, cause death? नहीं, that is also one. Other adulterants are also there. We'll come to that. Adult adulterants, they are also there. They are cumulatively affecting the body. बस इनको क्या है, जो बंदा बेचता है उनका तो पैसा कमाने का ही वही लालच रहता। अब जो बंदा पी रहे उनको तो आदत हो गया पीने का, थोड़ा मनी में आना, चीप लिखकर बोलते हैं ना, चीप में आना। अब चीप में कैसा आ जाएंगे उन्होंने, अल्कोहल तो महंगाई है, इसको चीप कैसा बना के, कैसा बनाना चीप, मिलावट करो, तो सस्ता मिल रहा उससे मिलावट करो, इसीलिए वो तो बनता ना। वुड स्पिरिट बोलता है, मिथाइल अल्कोहल वुड स्पिरिट भी बोलता है। तो वुड स्पिरिट में क्या होता है, ज़्यादा मिथाइल अल्कोहल होता है, मिलावट करो उसको। इनका क्या जाने, उन्होंने मरे ना मरे उसका तो कोई ताल्लुक नहीं। अब ये बिल्डिंग भी बन रहा कॉन्ट्रैक्टर, कुछ फायदा नहीं है तो क्यों बनता है कॉन्ट्रैक्ट, हर एक तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनता। सस्ता ही ऐसा एक दिन में खड़ा रहा और दूसरा में गिर गया, तो उनका फायदा है, उसी में वही करेंगे ना। So that is what we need to understand. Then contributed to the event, वो तो ठीक है। Then moving on to the other one. And your case, I'll just tell you that. वो अभी पूछे ना क्यों लोग क्यों मरेंगे बोल के, उसमें कभी कभी साइनाइड भी मिलावट होता है। जो गुंटूर में हुआ एक डिस्ट्रिक्ट आंध्रा में, उसमें ऑलमोस्ट लॉट ऑफ पीपल दे कंज्यूम वन आफ्टर अदर, दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग दिस। विल सी व्हाट आर द कंप्लेंट्स, हाउ पीपल डाइड। वो केस था हमारे पास, विल डिस्कस दैट। हाँ, हर एक जगह होता है। एंड गुजरात एटलीस्ट दे आर गुड पीपल, दे ट्राई टू अरेस्ट इट। वो लाया नहीं लाया,
देखेंगे ही कि ना, शायद नहीं है, अभी नहीं लाया केस का, नहीं फिर और कभी लाएंगे। वो केस हमारा नहीं है अभी हमारे पास, नहीं मिल रहा। ओके ठीक है, छोड़ो, फिर बाद में कभी हम याद दिलाना। वो था हमारे पास एक केस, विल ट्राई टू डिस्कस दैट। है ठीक। नाउ ए यंग मैन गॉट एडमिटेड एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्या था इनका कंप्लेंट्स? सीवियर वॉमिटिंग, डिजीनेस, abdominal pain, applied home remedies, ठीक है, बल्कि applied home remedies at night, but condition deteriorated further। और उसके बाद क्या हुआ? Then at about 7:30 in the morning, 6 more patients, इनके अलावा जो भी इनके बैच में पिया, 6 more patients with the same symptoms। और इसका और क्या था? breathlessness, unconscious, then treated as food poisoning initially। ये तो food poisoning में भी होता है, बल्कि एक साथ सब लोग वैसा ही बोल रहे, इट मस्ट क्रैम्प्स भी बोल रहे, इट मस्ट बी फर्स्ट जो सिम्टम मिलता है उसी के हिसाब से चालू होता है ना ट्रीटमेंट। सो ऑल ऑफ देम वर इंडक्टेड इनटू हॉस्पिटल ट्रीटिंग दैट एज ए फूड पॉइजनिंग केस। और हल्लू क्या होता? और 18 पेशेंट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट। जो फूड पॉइजन के लिए ट्रीटमेंट चल रहा काम नहीं कर रहा वो। सेम सिम्टम्स, 2 deaths रिपोर्टेड ऑलरेडी, 2 deaths रिपोर्टेड। नथिंग कॉमन फाउंड अबाउट द डिनर का, हाँ एक साथ तो डिनर लिए, उसका तो असर नहीं। अगर सचमुच कुछ फूड का प्रॉब्लम है तो जो बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल का ट्रीटमेंट के लिए तो वो तो रेस्पॉन्ड तो होना ना, उसके लिए रेस्पॉन्ड नहीं हो रहा। पैनिक इन हॉस्पिटल, police and social workers were informed, then relatives of the friends were questioned, all the patients were from labor class and below poverty line। That was the one common thing for them। Then next 13 hours there were as many as 10 deaths reported, है ना। Now what is the diagnosis? If it is not this thing food poisoning, what could it be? Then labor बोल रहे, ठीक है, this may be something on account of the adulteration of alcohol, so could it be methyl alcohol? Doubt। Next 3 days total 387 patients हो गया। then total deaths, वो तो इतना एडमिट हो गया, उसमें से 148 आदमी को डेथ हो गया। vision lost for 87, this is the point which you need to focus upon, vision lost for 87 people। now so accordingly उसका पूरा जांच हुआ। so victims were mostly from labor class, majority of them were living below poverty line and were daily wages। in hospitals women were crying, that so it was so deafening। some persons were running for medical help while others were praying for the welfare of the kith and kin, while some others were preparing for victims last day। वो तो मीडिया पीपल आए and ultimately that samples were sent to the nearest lab and then their blood sample जो भी जिंदा थे उसका पूरा ले लिए and then we could find that it is the methyl alcohol which is responsible, and there were a lot of adulterants, other adulterants which were also responsible। and ये लोगों का पीने का आदत पहले से है, not for the first time। those who are having the thing वो उस दिन थोड़ा ज़्यादा काम हो गए, ज़्यादा पी लिया एंड उसी फेटफुल डे ज़्यादा मिलावट भी हो गया। सो अल्टीमेटली दैट वाज द थिंग विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, हाँ एक ही साथ हो गया सब कुछ बोलते ना, कुछ चप्पर फाड़ के कुछ बोलते ना, कुछ आया तो सब पूरा, हाँ वैसा ही आता है। पर वो पॉजिटिव इसमें है, पॉजिटिव नेगेटिव में भी ऐसा ही आता है। आइडेंटिफिकेशन स्टेज, हाँ आइडेंटिफिकेशन स्टेज इट इज टर्म्ड एज द स्क्रीनिंग और इनिशियल टेस्ट, उसको बोलेंगे हम। आप कल पूछ रहे थे ना उसका प्रिजम्पटिव टेस्ट, प्रिजम्पटिव हाँ स्क्रीनिंग टेस्ट, इसको भी इनिशियल बोलते हैं, प्रिलिमिनरी बोलते हैं, कुछ तो बोलो। सो दैट इज कॉल्ड। नाउ दिस विल ओनली टेल अस क्लास ऑफ सब्सटेंसेस। अब नार्कोटिक्स का आपको डाउट है, यू हैव इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, सम इन्फॉर्मर टेल्स यू साहब हम एक देखता है एक तो रोड पे एक कौन सा ट्रक आप बोले ना वही नंबर का ट्रक जा रहा
उसमें तो ऐसा कुछ हम गड़बड़ दिख रहा, वो हमारा उसमें था ना, क्या वो फिल्म था, वो फिल्म कुछ था ना आया वो अर्जुन का, क्या था वो, सैंडलवुड का, सैंडर का, क्या था वो, पुष्पा, पुष्पा क्या था वैसा ही। सी ऐसा कुछ गड़बड़ लग रहा, वो ट्रक लेके बंदा निकल रहा, उसमें से कुछ वाइट पाउडर ऐसा, हमको तो ऐसा एक पैकेट गिरा रास्ते में, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you will have the power of seizure only when you establish that this material is सचमुच narcotics है। अभी तो you can't say let please wait, stop the vehicle, I'll take this, send it to the lab, I'll find out it is narcotic, then I'll see। बंदा रुकता क्या? तो इसीलिए क्या करना, NCBA लोग, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, they have adopted this preliminary or screening test or initial test and they will also give you report। पंचा के सामने होता है, नार्कोटिक्स वेरी डेंजरस। रिसर्च सीजर में पहला वो सब देखता है, हमारे सामने एक तो NCBA ऑफिसर आया, उनके सामने थोड़ा पाउडर निकाला, इतना रैंडम सैंपल बनाया, बहुत रहता उसका सैम्पलिंग प्रोसीजर नार्कोटिक्स में ज़्यादा रहता, उतना लिए और हमारे सामने वो NCBA किट खोला है, उसमें से ये सोल्यूशन हमको दिखाया, वो टेस्ट करे, वैसा पीला रंग आया, वैसा फलाना रंग आया, और इससे उन्होंने बोला ये हीरोइन को ऐसा रंग आता है, तो या सहमत है हम, वो जो साहब बोला है वो ये वैसा कलर दिखा, ऑल दैट पंचनामा में लिखते हैं ना। तो देर आर सम कलर थिंग, तो उसके लिए कोई प्रिपरेशन का ज़रूरत नहीं। अगर लैब में करना है तो सैंपल को प्रिपेयर करो, उसमें एक्सट्रैक्शन करो, फिर इसको फीड करो इंस्ट्रूमेंट, ये सब झंझट तो रहता, बट यू कांट वेट टिल सच टाइम। सो ये प्रिलिमिनरी जो टेस्ट होता ना, उसका महत्व वही है। इट विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन नेवर, बट देन इट विल परमिट यू टू टीज दैट बिकॉज यू आर एस्टैब्लिशिंग विद द प्रिलिमिनरी टेस्ट, यस इट इज डेफिनेटली सम नार्कोटिक, कोकाइन है, हीरोइन है, वो बात है, मगर ये तो नार्कोटिक है। आपका तो पावर मिलेगा NDPS में सीज करने का, सर्च करने का, वो पूरा हमारा 161 का वो उसमें लेके पूरा प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर में जो होता है हमको पूरा हमको पावर्स आ जाता। सो फॉर दैट यू नीड टू एस्टैब्लिश दैट इट इज़ नार्कोटिक, वो हमारा प्रिलिमिनरी टेस्ट इसमें हेल्प आएगा। नाउ सेकंड एनालिटिकल टेस्ट इज द कंफर्मेशन। सेकंड वन इज दैट यू नीड टू से दैट इट इज हेरोइन। नाउ फॉर एग्जाम्पल हीरोइन सबको पता है, ये क्या फार्मूला होता है, डायएसिटाइल मॉर्फिन। मॉर्फिन तो कहाँ से आता मॉर्फिन, ओपियम। ओपियम में कैसा आता ओपियम, शी मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, ओपियम पॉपी है ना। सो अनराइप है, राइप है, अनराइप वो याद रखना। अब पूरा पक गया, दैट कंटेंट विल बी लिटिल डिमिनिश्ड। सो अनराइप हमको पता रहता है अनराइप कौन सा है, राइप कौन सा है। कभी पिया, कभी लिया, ओपियम नहीं लिया ना। हाँ नहीं, वो जो इसको करते हैं ना कल्टीवेट, उसको पता चलता है, हमको तो थोड़ी इतना पता चलता है कौन सा कच्चा है कौन सा पक्का है। तो उसमें क्या करेंगे, वैसा लैंडसेट्स बोलते हैं ना, उसको जाके वो स्टेज देख के, इतना डीप भी कट नहीं करना उसको, थोड़ा हल्का सा कट करे तो लैटेक्स इतना आता। हमारा वो कैलोट्रोपिस बोल के सड़क में मिलता ना, वो वाली, उसको तोड़े तो क्या होता, लीफ पे लैटेक्स वाइट वाला आता है, वैसे ही वाला जाएंगे। तो उसको क्या करेंगे, अब इसका मेहनत कितना देखो, हर एक ट्री के पास जाना, ऐसा करे तो इतना कितना था। हाँ, तो इतना कल्टीवेशन करना है, वही छुपके करना है, वो तो कल्टीवेशन इज़ नॉट लीगल, इट्स इलीगल। तो उसमें क्या होता, वो क्रूड उसमें जो लैटेक्स बनता, वो वाइट वाला थोड़ा हीट से ब्राउन बनता। मगर ब्राउन शुगर क्या है, फिर वाई इज इट कॉल्ड ब्राउन शुगर, वाई इज इट कॉल्ड पुअर क्वालिटी तो पता है, वाई इज इट कॉल्ड, वाई इट इज गेटिंग ब्राउन शुगर नेम, ब्राउन तो है कलर, शुगर क्यों आना, इसको नाम ऐसा क्यों आना। हमको पता है एक एक प्लांट में इतना ही आने वाला है, कंज्यूम करने वाला इतना है, पैसा तो फ़ायदा हो रहा जो बंदा उसको सेल कर रहे, तो लोग क्या करेंगे, ये बंदा कैसे तो भी लेंगे हमारे से, तो हम बोलेंगे मार्केट में ज़्यादा है इसका वैल्यू, इतना वो रेक्सिन, इतना शुगर,
स्वीट तो होंगे, इसमें मिलावट करो, दे दो, जो ब्राउन शुगर वैसा ही आ रहा है। नहीं, इसका बल्क क्वांटिटी बल्क करने का। शुगर मिला दे। हाँ, शुगर मिला है तो ब्राउन वाला कलर, ये वाला टेस्ट, इसको ब्राउन शुगर बोलता है। तो दिस इज हाउ इट इज। अदरवाइज इट विल हैव ए वेरी, वो काफ़ी पूरा थोड़ा जल गए तो कैसा बू आता, काफ़ी हमारा जो पीते हैं उसका थोड़ा ज़्यादा जल गया, थोड़ा अलग का टेस्ट आता, वैसा ही टेस्ट आता। डोंट थिंक आई हैव टेस्टेड इट, वो बुक में जो पढ़ के वो बता रहे आपको, तो वैसा स्मेल टेस्ट आएगा उसको। सो दैट इज हाउ यू हैव टू, दैट इज हाउ इट गेट्स इट्स नेम। व्हाट ब्लैक टार रहता ना, वैसा ही रहता उसका। दैट इज, एंड इट्स ए मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ अल्कोलाइड्स। उसमें से प्लांट अल्कोलाइड्स, ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स which are called active ingredients, they are called active ingredients. एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा आता है हमारा? मॉर्फिन। तो मॉर्फिन, तो मॉर्फिन का द्विगुणी वो इफेक्ट आना बोली तो, नाउ आई टोल्ड यू दैट मॉर्फिन प्लस एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्रेट और एसिटाइल कोलिन, ये सब मिला है तो क्या बनता? एसिटिक एसिड से ये मॉइटी रहता ना, CH3CO बोल के लिखा ना कल, वो ले लेंगे और ये बनेंगे मॉर्फिन डाई एसिटाइल हेरोइन। तो इसके अलावा ये तो ओपिएट्स बोलते हैं इसको, ओपिएट्स जो बोले तो प्रोडक्ट्स ऑफ ओपियम। ये तो नेचुरली अकरिंग हो गया, नेचुरल से सेमी सिंथेटिक बन गया। अब तो सिंथेटिक, पूरा सिंथेटिक में क्या होता? फेंटानाइल बोल के रहता, फेंटानाइल, FEN, फेंटानाइल, TYNL, फेंटानाइल। ए फेंटानाइल में दिस इज नॉट ओपियम, this is not opium at all, but then it will have effects which will mimic the property of an opium, hence they are called opioids. Opiates अलग है, opioids अलग है। Opiates they are products, semi synthetic products of opium, crude opium. Opioids जो होता है, they are mimicking and chemically they are not related to opium at all. Why are they getting the name opioid? Because they are mimicking the action of opium, and that too their potency is 100 times than that of heroin also, fentanyl. इतना भी खाए तो हो गया। कहाँ की they feel that they are in a different, they feel that they are as if they are flying, ऐसा छत्ते पे आएंगे, ऐसा हम भी उड़ रहा बोल के गिर जाएंगे, मर जाएंगे वैसा। So they will go into that kind of a thing. Times called hallucination also. तो ये तो हो गया हमारा ये नार्कोटिक्स का। Where are we? In what context narcotics has come? हाँ, नहीं, this is synthetic, naturally occurring, synthetic हो गया, semi synthetic हो गया, तो पूरा semi synthetic category your heroin and all, morphine वो सब आता। So pure, completely synthetic. But the only thing is why we are calling them opioids, because they are giving symptoms which are very equivalent or more potent. ये बनता है, इसका कोई medicinal value नहीं है, please remember. No medicinal value absolutely for fentanyl. पानी के लिए बोलो, पानी लेना नहीं दिया? हाँ, please. तो हाँ हाँ सेमी सिंथेटिक हेरोइन, heroin is, I mean, when we are talking about opium, heroin is the best of it. So our pethidine and methadone, under fentanyl only. Fentanyl is the top. उसके बाद अपना pethidine and methadone, वो भी है, ये ज़्यादा पोटेंट है। हाँ, मैंड्रैक्स बोल के, मैंड्रैक्स भी बोलते हैं ना, वो सब दे आर लो लेवल। बट अब वो समझना कि ये पूरा जो है मेडिसिनल वैल्यू कुछ भी नहीं है, मेडिसिनल वैल्यू कुछ भी नहीं है। हेरोइन नहीं तो ये मॉर्फिन के लिए थोड़ा है, मॉर्फिन के लिए कैंसर पेशेंट्स का टर्मिनल हो रहता है ना, उसके लिए तो बिकॉज दे आर नॉट एबल टू बेयर द पेन, उसके लिए पेन रिलीविंग, एनाल्जेसिक। तो उसमें क्या होता है, नाउ दिस फेंटानाइल वगैरह वाला नो मेडिसिनल वैल्यू,
एंड इसीलिए क्या करते, चुपके बनाते वो लोग इन ए लैब्स कॉल्ड क्लैंडस्टाइन लैब्स। इसको बोलेंगे डिजाइनर ड्रग्स। क्यों? डिजाइन के ये R&D करेंगे, जितना आदमी है वो तो अडिक्ट बन गया, उनके लिए और पटेंट पूछेंगे, डिमांड है, सप्लाई है, तो इसीलिए वो डिजाइनर ड्रग्स है उनका नाम। एंड वो बनता है इन लैब्स विच आर कॉल्ड क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का वेरी सीक्रेटली, जैसा एक्सप्लोजिव्स बनता है क्लैंडस्टाइन हर एक का रहता है लैब, छोटा मोटा लैब होना चाहिए उसके लिए। तो डायलापिडेटेड बिल्डिंग है, जो किसी का नज़र इसके ऊपर नहीं रहता, वैसा चुनेंगे और रात में काम करेंगे ताकि कोई, हमारा पेट्रोलिंग टीम वो भी उससे भी होशियार है। अभी देखिए ऐसा धुआं आ रहा, ऐसा तो कुछ लाइट जल रहा, क्या बात है, वो लोग उधर जाएंगे हल्लू और पूरा पंडा फोड़ेंगे, तो उसमें ऐसा भी निकलता। सो दैट इज अबाउट क्लैंडस्टाइन। और ये कौन सा है, डेट रेप ड्रग्स, वो कौन सा है? ये पार्टी वगैरह में जो सेड्यूस करने के लिए और थोड़ा नाम क्या क्या है उसका? GHB क्या है GHB का पूरा नाम? गामा हाइड्रोब्यूटर है, गामा हाइड्रोब्यूटेरिक एसिड, GHB। और LSD है, हाउ? गामा ब्यूटेरो GHB, गामा हाइड्रोब्यूटेरिक एसिड, हाइड्रोब्यूटेरिक एसिड। और रोहिपनॉल, कीटामाइन, कीटामाइन, हाँ कीटामाइन में इसमें यूज होता है। कीटामाइन इज वन, रोहिपनॉल इज वन, GHB। इसका शॉर्ट्स भी K है, केटामाइन ओनली K। हाँ के भी बोलता है, स्ट्रीट नेम्स अलग रहता है इसका। स्पीड बॉल बोलते, कभी क्रैक बोलते। क्रैक क्यों बोलेंगे कोकेन को? क्रैक की क्रैंक, क्रैक बोलते हैं, क्रैक बोलता है इसको। क्रैक नहीं, ये क्रैक नहीं, क्रैक CRACK। कोकेन को क्रैक बोलता है, कोकेन को हेरोइन के साथ मिक्स करता है। दैट इज स्पीड बॉल। एम्फेटामाइन, कोकाइन, ये तीनों मिला तो स्पीड बॉल बनता है, उसको स्पीड बॉल है उसका नाम। इसका क्या है? ये पाउडर जो कोकाइन का होता है ना, लीव से बनता है, एल्कोजेलम कोका, दैट इज ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट। कोकाइन हमारे इधर नहीं मिलता, साउथ उसमें मिलता। तो इसमें क्या होता है, नाउ इफ यू वांट टू स्नॉट, क्या करना है, इसको फ्री बेस में कन्वर्ट करना है इसको। सो फ्री बेस में कैसा कन्वर्ट करोगे, थोड़ा अल्कोहल इसमें डालोगे तो फ्री बेस बनता। फ्री बेस बनने में इसको ऐसा क्रैकलिंग साउंड आता, क्रैक साउंड, कोई चीज़ क्रैक हो तो कैसा आता साउंड, वैसा क्रैक साउंड आता, इसीलिए क्रैक नाम आया उसको। मतलब कोकेन को अल्कोहल में, हाँ, इसको फ्री बेस में कन्वर्ट है ताकि इसको वाटर में अच्छा मिल सके उसको। तो ऐसा स्नॉटिंग के लिए थोड़ा वो पेपर रहता है ना, कई मूवीज में भी दिखा था, वो सिल्वर फॉइल में ऐसा थोड़ा हीट करता है बोल के वो नोट लेता है करेंसी, इसका लेस बनता है ऐसा ही, एक एक लेयर का स्नैप करते रहता है ऐसा बोल के, ऐसा स्नैपिंग करते रहता है। हाँ क्या है? नहीं कोकेन नहीं, वही हेरोइन। तो वैसा दे विल प्रैक्टिस दैट काइंड ऑफ अ थिंग। स्नॉटिंग माने वो है ऐसा। हाँ, तो दिस इज अबाउट रोहिपनॉल। अब क्या है, व्हाट इज द मेथडोलॉजी? डेट रेप ड्रग्स है इसका नाम, डेट रेप ड्रग्स। व्हाट डू यू मीन बाय डेट रेप ड्रग्स? डेट रेप, डेटिंग पता है ना? हाँ, डेट पर तो मिला है। डेट रेप ड्रग, हाँ डेटिंग के लिए लेके जाएंगे औरत को, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड। अब उधर जाने के बाद मिलाएंगे ये सब, रोहिपनॉल या तो GHB। अब इसका फायदा क्या है, वाई आर दे चूजिंग ओनली दिस पर्टिकुलर ड्रग्स? इसका क्या है, मिसिबल विथ वाटर, कलरलेस, ओडरलेस, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी मिक्स हो जाता है, फ्रूटी में दे दो, पी लेंगे। देन द मोमेंट शी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग, शी लूजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बॉडी। वो पूरा रात, उस दिन पीछे दिन क्या हुआ पता भी नहीं चलता। हाँ, इसका रेप भी होने दो, कुछ मर्डर भी होने दो, कुछ भी पता नहीं चलता।
इसीलिए डेट के नाम पे उनको लेके जाओ, इसके ऊपर रेप भी करो और कुछ भी बलात्कार करो, कुछ भी करो, इनको पता नहीं चलेगा, एंड दैट इज फैसिलिटेटेड बाय ड्रग. सो हेंस दे आर कॉल्ड पॉपुलरली डेट रेप ड्रग्स. रोहिप्नॉल एक है, GHB एक है, केटामिन तीनों. एंड व्हाट इज दिस एंटीडोप, एंटीडोप स्पोर्ट्स में करते हैं ना, ओलंपिक क्राइम्स में, बट डू दे डू दैट? हाँ, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स. मतलब एनाबॉलिज्म मीन्स, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म पता है? एनाबॉलिज्म, हाँ, एनाबॉलिज्म में बिल्डिंग अप बॉडी, कैटाबॉलिज्म मीन डिग्रेडेशन, ऑपोजिट है. कैटाबॉलिज्म का ऑपोजिट है एनाबॉलिज्म. नाउ द पर्सन, इफ आई वांट टू पार्टिसिपेट इन ए स्पोर्ट, आई हैव टू कीप माई सेल्फ फिट. Fitness can be by taking and doing some exercise, and that's good. But अचानक overnight or maybe within short span of time I want to build my musculature. अब क्या करना है? हाँ, steroids लेता है. And you must have seen that horse races में भी इतना shining होता वो horse का. You compare it with any other horse. सड़क पे horse रहे तो वो सुस्त रहता है, ऐसे कब मरता ये बोल के ऐसा दिखता वो. हमारा वो इक्वेस्ट्रियन मीट होता ना, उसमें से ऐसा आएंगे वैसे आज ये मरने वाला है क्या बोल के. तो ये तो अलग रहता, क्यों? चमकता इसका स्किन वगैरह, तो थोड़ा उसमें उनको वो भी मिलता, स्टेरॉइड्स भी मिलता. तो दे आर कॉल्ड एनाबॉलिक. एनाबॉलिक मतलब बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड जो उस लेने से हमको क्या प्रॉब्लम है? स्पोर्ट्स में तो डिस्क्वालीफाई होता है. यूरिन सैंपल टेस्ट करेंगे, अगर इनको उसमें मिला देन यू आर डिस्क्वालीफाइड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट. उसके अलावा अब हमको हेल्थ के वजह से क्या प्रॉब्लम है? उससे हेल्थ के प्रॉब्लम क्या है हमारा? नॉट नेचुरल, वो फ्लश आउट होने में बॉडी को नुकसान होता है. नुकसान क्या है? उतना तो बड़ा नुकसान हम तो नहीं दिख रहा. देयर मस्ट बी समथिंग बैड आल्सो, सो दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव बैंड, है ना. और दूसरा वजह तो होगा इसका. व्हाट इज दैट? These anabolic steroids, if you try to see the chemical composition of that, it is resembling your sex hormones. Males में there is a hormone for secondary sexual characters like beard. एक एज के बाद below certain age, why we said minor major, एक below age में मेल्स फीमेल डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं रहता, वॉइस में, दिखने में ऐसा तो नहीं दिखता ना. That is the reason why hormones are not that level. Below 18 minor में इतना हार्मोन का उतना प्रोडक्शन नहीं रहता, इसीलिए they will be very similar to the females only, है ना. So the hormone which is responsible for maleness, secondary sexual characters, and then growth at the hair, at the groin and the axilla and all, these are all change of voice, and that's all because of a hormone called testosterone. Now females also accordingly there is a maturity, estrogen. Now the problem with the anabolic steroids is their chemical structure is almost very similar to your hormones, very similar to hormones. इससे क्या होता है? बॉडी विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश, हमारा अंदर जो सिस्टम है with that will not differentiate between an anabolic steroid and then your हाँ जो हार्मोन अंदर चल रहा and anabolic steroid. Result is if a male person starts taking that in excessive amounts, now chances that he may become sterile. क्यों बोले तो ज़्यादा आ रहा, so he may become impotent after a very अब जो भी रेस्टलेस वगैरह है, वी कीप हियरिंग दिस, वो स्टेरल हो गया, वो क्या बोलते हैं, स्टेरिलिटी आता है उनको, तो ही लूजेस द पोटेंसी, ना इम्पोर्टेंट बनता. जैसा ही औरत लोग अब हीरोइंस में ज़्यादा क्या होता है, हाँ नहीं, व्हाट विल हैपन, अब मूवीज़ में देखेंगे आप, वो 1-2 साल उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के वो उसमें आता, वो सेलिब्रिटी अचानक एक ही साल में इतना बड़ा हो जाता. हाँ मोतवानी, हर एक इनका तो बाहर आया, और तो कहानी वो श्रीदेवी के बारे में भी वैसा ही आया. श्रीदेवी भी कम नहीं है,
उन्होंने भी क्या क्या सर्जरी नहीं करे, क्या क्या हार्मोन्स का क्या क्या नहीं करे. So that is, you know, what will happen, they will become, because the system inside, it is treating it as a testosterone, फीमेल ले रहे मगर टेस्टोस्टेरोन जैसा उन्होंने समझ रहे बॉडी. तो क्या होता, अदरवाइज लेडीज स्टार्ट डेवलपिंग मुस्टैचेस, दे स्टार्ट डेवलपिंग बियर्ड्स, यू नो, ऐसा सेकेंडरी सेक्शन. उषा के बारे में भी पीटी उषा का बहुत कहानी चला, आप सुने तो. उन्हें दिखने में ऐसा ही दिख रहा, मेल जैसा दिख रहा, वो आया ना पूरा. और उसके बाद हमारा और एक सेलिब्रिटी था, उसके बारे में भी आई शुड बी टेलिंग, शी इज नाउ चिरंजीवी का वो था ना, वो बहू रामचरण का बीवी. पहले देखने में कैसा था, उन्होंने भी ऐसा ही, शी वॉज लुकिंग मोर मैस्कुलिन. उनके बारे में भी उपासना के बारे में भी ऐसा कहानी हलचल हुआ, मगर दिस ऑल बिकॉज ऑफ दिस. सो दैट इज द रीजन दे वर ऑल्सो बैंड, है ना. और एक भी नार्कोटिक्स में आप ये सोचना, ये क्या बोलते हैं उसको, स्निफर्स, ब्लू स्निफर्स. अब ये रैट पिकर जो होता है ना, दे आर इन द हैबिट ऑफ स्निफिंग पेट्रोल. हाँ, वाइटनर. क्यों करता है वो, हमको क्या प्रॉब्लम है, वो स्निफ करने दो ना, हमको क्या प्रॉब्लम. हाँ, वो रिलैक्स होता बेचारा, क्या हमारा प्रॉब्लम. वाई शुड वी बैन दैट ऑल्सो. इसका वजह क्या है, बिकॉज दे आर स्निफिंग. माने कौन सा इफेक्ट हो रहा, तुम्हारा रेस्पिरेटरी जो म्यूकस हो रहा है ना, जो म्यूकस माने मॉइस्ट क्यों रहता है हमारा नॉस्ट्रिल्स के अंदर, म्यूकस. वो म्यूकस का मेम्ब्रेन जो होता है पूरा खराब हो जाता है. सो व्हेन देयर इज ए म्यूकस मेम्ब्रेन, इट इज वार्डिंग यू अगेंस्ट ऑल बैक्टीरिया. एक है स्किन, एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियल है, ये सब हमको बैक्टीरिया से बचता है. अदरवाइज वाइड कीड़े क्यों डेड बॉडी के ऊपर जाते, हमारे ऊपर क्यों आता नहीं, हमारे ऊपर भी आता, मर जाता. मगर अब बर्न वार्ड्स में, बर्निंग में आदमी मर जाता, क्यों, बर्निंग के वजह से नहीं, सेकेंडरी इन्फेक्शन से. क्यों, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस चले जा रहा, स्किन तो चले जा रहा बेचारा. तो स्किन नहीं है, पूरा की आएंगे, सेप्टिसिमिया हो जाएंगे. सो दैट इज द रीजन नाउ. So it is going to disrupt the entire mucous membrane, and once your mucous membrane is affected, your respiration gets affected, the entire your lungs get affected, आदमी मर भी जाता. So that these are all the things, and that is the reason why they were also banned. ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के नेम्स है, कुछ कमर्शियल नेम्स या प्रोडक्ट नेम्स, वो तो हमको उतना तो रिसर्च नहीं करें. एनाबॉलिक स्टेरॉइड न, वो तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड का मतलब ये केमिकल नाम है, दूसरा स्ट्रीट नाम भी होगा उसका, आप बताइए. केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, नाफ्ता हो गया. नहीं, ऐसा ही आदत, किसी को उल्टी आता वो पेट्रोल से, वो लोग भी ऐसा भी है. तो दिस ऑल आदत. हाँ, बस your thinking and then your body affinity for that, or you are allergic to that, whatever. How much was present then? Pharmacodynamics is the science concerned with the pharmacodynamics. क्या होता है वो पूछेंगे. It is the science concerning with the measurement of drug action. बॉडी में गए तो इसका एक्शन क्या है, कितना पोटेंसी है, कितना अफेक्टिव है, कितना एक्टिव फॉर्म है, वो सब. Receptors, endogenous, macromolecules, nucleic acids, proteins, complex lipids are the actual receptors that xenobiotic binds to correlate with the magnitude of the effectiveness observed recognition. वो सब तो बकवास लग रहा है, क्या है ये. Now, when a poison enters, I told you also that they are going to attack the macromolecules. What are the macromolecules that we are made of? Nucleic acid, DNA वगैरह है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है. वो तो प्रोटीन जिससे हमारा बॉडी बिल्ड होता है, प्रोटीन बनता है. और लिपिड्स तो हमारा शरीर अच्छा ऐसा स्मूथ रखने के लिए वो लिपिड्स भी बनता है. Now, some poisons, they are going to directly attack these macromolecules, and some because there are some receptors, and then these poison, they are going to attack the receptors.
कभी कभी परमिएबिलिटी बोलते हैं ना, परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल देर इज इन द कैविटी, आवर कैविटी इज लाइंड बाय वो इंटेस्टाइन का स्टमक का पेरिटोनियम बोलता है ना, उसका थोड़ा परमिएबिलिटी होता है, हर एक अंदर नहीं जा सकता. स्टमक में सम लिक्विड्स आर देयर इन द बॉडी कैविटी, सम आर इनसाइड द स्टमक. जो स्टमक कंटेंट है बार बार बाहर नहीं आता, जो कैविटी में जो फ्लूइड्स है वो तो बार बार नहीं अंदर जाता. देयर इज अ परमिएबिलिटी लिमिट. कौन सा मेंटेन करता है वो? हमारा लाइनिंग हो, पेरिटोनियम है, स्किन है, वैसा चीज़ है. परमिएबिलिटी किसको परमिट देना? हानिकारक है शरीर के लिए वो तो नहीं जाएगा, जो सही है यूजफुल है वो तो जाएगा. सो दैट परमिएबिलिटी जो होता है मेम्ब्रेन का वो डिस्टर्ब हो जाता है. कहीं कहीं ये पॉइजन से वो होता है. इसका मतलब क्या होता है? जो लिक्विड हमारा कैविटी में, बॉडी कैविटी में होना चाहिए उसका परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, स्टमक में जाएगा. जो स्टमक में रहना है वो इधर आएगा. आस्मासिस बोलते हैं ना, आस्मासिस की वजह से ऐसा तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होते डाइल्यूट होता है. बिकॉज ये परमिएबल है, मेम्ब्रेन तो है ऐसा ही, तो वैसा जाएगा. दैट विल अफेक्ट वंस योर पीएच सिस्टम. बॉडी में पीएच तो मेंटेन होना ही है. पीएच क्या होता है? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन. हाँ, पीएच वाटर सेवर जैसे लेवल होता है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन. नहीं, ये alkalinity acidity. negative algorithm negative logarithm of hydrogen ion is pH. मतलब इसका एसिड है pH लेस, न्यूट्रल है pH 7, अल्कलाइन है pH ज़्यादा. pH मीन्स दी नेगेटिव. तो पीएच 7 से ज्यादा. हाँ, अल्कलाइन बोले तो 7 पीएच 7 से कम. काम है, वो है. नींबू वगैरह, हमारे HCl वगैरह वो तो सब है. देन ये क्या हो जाएगा? ये परमिएबिलिटी में चेंज आ जाएगा. व्हाट टाइम इज इट? शुड वी कंटिन्यू? ब्रेक थोड़ा चाहिए? ठीक है, ले लेना. हमको तो कोई ब्रेक का सवाल ही नहीं है, आप लेना है तो. स्पीड तो बहुत अच्छी है. हाँ, स्पीड बहुत अच्छी है. अब कितने साल काम करे पुलिस के साथ, इतना स्पीड हमको भी नहीं है तो हम किस काम का फिर? हम भी आधा पुलिस हो गए. ठीक है, आप ले लेना, 5 मिनट लेना ना. जस्ट रिमाइंड मी अबाउट द टाइम. तो इसमें ज़्यादा रहता है, हम तो इतना तो नहीं बोलेंगे, हमारा एक्सपीरियंस से हमको बोलेंगे. वो तो शेयर तो हो गया, आप आराम से पढ़ लेना, कुछ है तो बता देना. And the most effective training it would have been at least 1 month. हमारे साथ रहे तो why only 1 medal? I could have ensured lot of medals for you. आप ये सजेस्ट कर लेना आपका बॉसेस को. हाँ, अब you can do that only when you can win at least 1 medal here. नहीं तो इतना पैसा भी खर्चा, 1 मेडल भी नहीं है, कौन सा ट्रेनिंग दिए आपको, कौन सा मिला, उतना तो नहीं बोलना था फिर. नहीं मैडम, 2 मेडल लेके चल रहा है. हाँ, इसमें भी आना. फोटोग्राफी तो हम कुछ भी नहीं बताया ना, वो उनका स्पीकर रहता है. इसमें तो मेडल फिक्स हो गया. मेडल फिक्स हो गया. फिक्स हो गया. ठीक है, अच्छा है. कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए लड़ रहे हैं. हाँ, हाँ, वो लोग अभी आए नहीं बाहर से? पुलिस का कुछ हो रहा है. क्या हो रहा है? किधर? हमको आ रहा मैसेज आ रहा, क्या आ रहा? फोन आ रहा. ये कब आया? कितने फोन से आया? अभी आया. नहीं दिख रहा ना उसमें, फोन में ही. आप उठाए? मिस्ड कॉल हो गया. व्हाट्सएप में देखिए. व्हाट्सएप में था. नहीं, कौन सा वो रिक्रूटमेंट कल हुआ ना, वो उसके बारे में होगा शायद. पुलिस किधर है? करके था. नहीं, पुलिस. ये पुलिस कौन सा? कौन सा? अपना वो तो कोशिश कर रहे हैं. कहाँ तक पहुँचे हम? చెప్పండి. गुड मॉर्निंग. अब कौन बात कर रहे हैं प्लीज? हाँ, बोलिए सब. हाँ, बोलिए प्लीज बोलिए.
I am not there in National Police Academy, sir, but I am very much there with Pune, working for NFSU, National Forensic Science University. I was there for almost 7 years I was there. कुछ काम हमसे? You have applied there. Okay, okay. In AD law ऐसा. ठीक है साहब, मगर I mean, what is your this thing approach? You are okay for job, or you want some occupation, or you want your that magistrate or judge ka wo? You are still in service. No, this is on deputation basis you are opting, huh? Yes. Deputation I don't suggest, sir. That's if you have very good respect and all in judiciary. And I don't think that much respect you will get in academy, sir. That is one thing. Teaching wise, okay, if you have that aptitude, that's okay. But then only thing is, teaching to theek hai, but you get lot of exposure to probationers and all, that's okay. But only thing is when it comes to respect and all, they feel that they are superior, they are great, and you are coming there as a guest, and then they are superior, you have to work under them. This kind of feeling they start showing up, civilian, non-civilian, vaisa to. Anyway, you have the experience of working in state academy now, sir. So, and you also, I think couple of times I could see your PowerPoints and all in academy also. You also were guest faculty there. So, you must be knowing their attitude. Vaisa to attitude vaisa hi rahega na wo logon ka. So if that is little tolerable, I think we can get along with them. No issue. No, sir. No. Because I joined NPA after my retirement, no sir. उसके लिए हमको नहीं आया, मगर some teaching allowance, I don't say 30% or 20%, but then you get good amount of teaching allowance and you get good accommodation and all other things are very good. We'll get inside, you get a vehicle and all, whatever you are entitled in your parent department, you will automatically get it. No issue, sir, no issue. But then they wish that we should be nearer, so that even holidays and all, if they call us, we are available. No issue, sir. But this is the only thing, you have to just ensure that whatever distance you try to maintain otherwise also in your profession, I think same kind of thing, if you can maintain, I think that will help us, I think. But there are, I have seen some, I shouldn't be naming them, but then some officers who have come in the capacity of ADLA, so they were trying to mingle with police and then they were trying to take little advantage of that and all, and that will happen. If you give leverage, accordingly they will also try to take a lot of, freedom with you. So if you maintain your dignity, I think they will also know that you are a serious man and unse panga lene ka nahi hai bolke, they will be little careful. So that is anyway, you know their attitude and this thing. That's the only thing. Otherwise, it's a good place to work and all. अच्छा रहता है, हर एक you can attend lot of events and all. अच्छा रहता है सब. Otherwise, it's good. Right, sir. Right, sir. Okay, thank you.